Hello students, now that inheritance of two gene. Inheritance of two gene. How the two gene will pass from two gene pass from one generation to another generation. So for that we have to study that is dihybrid cross. Dihybrid cross. For this, Mendel's take parents, that is round seed and yellow seed, and another one that is recessive, that wrinkle seed and green seed. It is of round and yellow, and this is of wrinkled and green. Whenever it produces gametes, it produces only one type of gamete that contain one capital R gene and another range of capital Y gene. When it produces gamete which contain one small r gene and one small y gene, then after the next stage of hybridization, whenever hybridization occur between them, they produce capital R, capital Y, small y. That is complete hybrid plant which contain both the one type of gene, capital R, capital Y, small y. This is of F1 generation. For selfing for F2 generation, capital R, capital Y, small y cross with the same type of genotype, capital R, capital Y, small y. How? Now how the gamete is formed in this means in male plants and in female plants. If we see the gamete formation, and this capital R fertilized with the capital Y and small y, and again small r fertilized with the capital Y, small y. We see in second law of Mendel, that is law of segregation or law of separation. Means whenever the gamete will formed, two different gamete will be segregated independently. दोनों gametes एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं और अलग अलग तरीके से वो सेग्रीगेट होते हैं. तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी लगेगा, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी लगेगा. इसी तरह से स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी लगेगा और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी लगेगा. दैट्स वाई it produce four type of gametes, that is capital R, capital Y, capital R, small y, small r, capital Y, small r or small y. These four different types of gamete is formed whenever dihybrid heterozygous is formed gametes. जब ये dihybrid heterozygous है और इससे जब gamete बनते हैं तो चार अलग अलग तरह के gamete बनते हैं. And we see the cross of F2 generation with the help of चेकरबोर्ड डिवाइस. ये डिवाइस जो होती है इसको अपन कह सकते हैं चेकरबोर्ड डिवाइस बना देते हैं ये. ठीक है, इस तरफ गैमीट आ जाएंगे, एक तरफ फीमेल के गैमीट, एक तरफ मेल के गैमीट. चार तरह गैमीट बनते हैं, 1, 2, 3 और 4. इसी तरह से इधर भी चार तरह गैमीट बनेंगे. पहला गैमीट क्या है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, दूसरा कैपिटल आर, स्मॉल वाई, तीसरा कैपिटल आर, small r, capital Y, तीसरा small r, small y. Like that here, these are the male gametes, female gametes. क्यों दोनों ही सेम है तो सेम गेमीट बनेंगे. कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई. जब ये गेमीट इस गेमीट के साथ फर्टिलाइज होगा तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई. ये इसके साथ फर्टिलाइज होगा तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. ये और ये फर्टिलाइज होंगे तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई. ये और ये फर्टिलाइज होगा तो स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. जब ये और ये दोनों फर्टिलाइज होंगे तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. ये और ये होगा तो कैपिटल आर, स्मॉल वाई. ये और ये होगा तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. ये और ये होगा तो स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल वाई,
ये और ये होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये और ये होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये और ये होगा तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये और ये होगा तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये और ये होगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये और ये होगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये और ये होगा तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और लास्ट में स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई. So these are the 16 complete genotype is formed whenever 4 different types of gamete is fertilized with the another 4 different types of gametes. So here 16 new combination, 16 total 16 combination is formed. Up if we see how many different types of combination is formed, तो सबसे पहले अगर इसको देखें that is genotype, that is कैपिटल आर कैपिटल वाई ऐसे बनता है एक, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई ऐसे बनते हैं दो, कैपिटल आर स्मॉल वाई ऐसे बनता एक. फिर नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई ऐसे बनते हैं दो, कैपिटल आर स्मॉल वाई ऐसे बनते हैं चार, कैपिटल आर स्मॉल वाई ऐसे बनते हैं दो. फिर ये दोनों फर्स्ट वाले गेमेट स्मॉल हो गए, स्मॉल आर कैपिटल वाई ऐसे बनता है एक, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ऐसे बनते हैं दो, स्मॉल आर स्मॉल वाई ऐसे बनता है एक. These are the different types of gamete and their ratio is of 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1. This is the genotypic ratio of Ap2 generation in dihybrid cross. This is the genotypic ratio of Ap2 generation in dihybrid cross. इनमें कैपिटल आर कैपिटल वाई एक बनेगा, इस तरह के दो, इस तरह का एक, इस तरह के दो, फिर चार, फिर दो, एक, दो और चार, ये जीनोटिपिक रेशियो. परंतु अगर अपन इसका फिनोटिपिक रेशियो देखें तो इसमें कम से कम एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई है, इसमें भी एक कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, इसमें भी एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई, इसमें भी एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई, ये सारे एक जैसे, यानी 1 and 2 3 और 2 5 और 4 9, दैट इज इन 9 at least complete one capital R and one capital Y is there, and their ratio, their phenotype is of round and yellow. इसी तरह से ये एक अकेला और ये अकेला, इसमें एक कैपिटल R है और दूसरा क्या स्मॉल y है, तो राउंड एंड ये स्मॉल y का क्या हो जाएगा ग्रीन. और यहाँ पर एक तीन ऐसे हैं, ये तीन हो गए, तीन ऐसे हैं जिसमें स्मॉल आर है और एक कैपिटल वाई है, दैट इज रिंकल्ड एंड येलो, और एक ये लास्ट में स्मॉल आर है एक स्मॉल वाई है, तो ये हो गए 1. देयर रेशियो इफ यू सी द फिनोटाइप रेशियो दैट इज राउंड एंड येलो. This is of 9. Second one is of capital R, small y, that is round and green. That is 3. Third one is of wrinkled and yellow. Again that is 3, and last one is of wrinkled and green, that is 1. So phenotypic ratio is of 9:3:3:1. So this is 2 gene inheritance dihybrid cross. Phenotypic ratio of dihybrid cross is of 9:3:3:1. The 9 is of capital R capital Y यानी round and yellow, 3 is of round and green, and 3 is of wrinkled and yellow, and 1 is of wrinkled and green.
So due to this dihybrid code, we can explain the law of independent assortment. Law of independent assortment, जिसका नाम है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी डिपेंड नहीं होता है, असॉर्टमेंट यानी उनका कॉम्बिनेशन। यहाँ पे अपन ने देखा था पेरेंट में एक तो कैपिटल आर कैपिटल वाई था, दूसरा था स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो F1 जनरेशन में आया था कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। यहाँ पे हम देखें कि जो कैपिटल आर है वो 50% कैपिटल वाई के साथ जाएगा और 50% किसके साथ जाएगा, स्मॉल वाई के साथ। इसी तरह से स्मॉल आर वापिस 50% कैपिटल वाई के साथ जाएगा और 50% स्मॉल वाई के साथ जाएगा। यानी जब यहाँ जीन सेग्रीगेट होते हैं, जीन यहाँ पे वापिस अलग अलग होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर जीन एक साथ जाए, यानी दोनों डोमिनेंट जीन है कैपिटल आर कैपिटल वाई हमेशा साथ जाए या स्मॉल आर स्मॉल वाई दोनों साथ जाए। ईच गैमीट इंडिपेंडेंटली असॉर्ट विद द ऑल अदर गैमीट्स, यानी ये जो गैमीट है कैपिटल आर स्मॉल वाई, जो 4 गैमीट बने हैं दूसरे, उन चारों के साथ इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होगा। जैसे ये 4 गैमीट बने हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये गैमीट। इसी तरह से कोई दूसरा गैमीट बात करें अपन, इधर एक ये इसके साथ भी फर्टिलाइज होगा, इसके साथ भी फर्टिलाइज होगा, इसके साथ भी फर्टिलाइज होगा। ईच एंड एवरी गैमीट्स assort or fuse with the another gametes independently. Their combination is not depend upon their parental combination, यानी वो हर गैमेट के साथ इंडिपेंडेंटली फ्यूज होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन पेरेंटल कॉम्बिनेशन पे डिपेंड नहीं आता है। यानी पेरेंट के अंदर कैपिटल आर और कैपिटल वाई साथ थे या स्मॉल आर स्मॉल वाई साथ थे तो अगली जनरेशन में भी साथ ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हर गैमीट्स दूसरे गैमीट के साथ इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से 2 नए कॉम्बिनेशन मिलते हैं जो कि पेरेंट में नहीं होते हैं। पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखें तो क्या, राउंड एंड येलो और रिंकल्ड और ग्रीन, और F1 जनरेशन में भी क्या था, राउंड एंड येलो ही आता डोमिनेंट कैरेक्टर की वजह से। परंतु ऑफस्प्रिंग में देखें तो 9:3:3:1 का रेशो आता है, उसमें ये 3 जो है वो राउंड और ग्रीन है, ये 3 जो है रिंकल्ड एंड येलो है। यानी राउंड एंड ग्रीन पेरेंट में नहीं है और रिंकल्ड एंड येलो भी पेरेंट में नहीं है। सो ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दैट न्यू कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो सीन इन द F2 जनरेशन। इसका मतलब ये है कि हर गैमीट जब फर्टिलाइज होता है तो दूसरे गैमीट के साथ इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है और उसका फर्टिलाइजेशन, उसका कॉम्बिनेशन, उसका फ्यूजन उसके पेरेंटल कॉम्बिनेशन पर कहीं इफेक्ट नहीं होता है। और उसी वजह से F2 जनरेशन में हमें नए कैरेक्टर्स या नए असेंबल्स भी देखने को मिलते हैं, लाइक दिस, दैट इज राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड एंड येलो। दिस इज द इनहेरिटेंस of 2 gene or law of independent assortment.